Hello students, welcome to the Learning Tricks YouTube channel. In this video, I am going to explain you when two parallel lines intersected by one transversal line, and based on that 8 angles are formed. Let's say one line L and another line M, both are parallel line, and one transversal line intersect it at two different points such that angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8. These 8 angles are formed. Now we know the names of the angles. For that we are making a pairs. Let's say angle 2 and angle C. What we are saying? They are corresponding angles. So corresponding angles are, and it would be in a pair. First one, that is angle 2 and angle 6. Second one, angle 1 and angle 5. Third one, angle 3 and angle 7. Fourth one, that is angle 4 and angle 8. These all are corresponding angles. Then if we are talking about these two angles, this and this, then these are alternate exterior angles. So alternate exterior angles, they are of two pairs. First one, that is angle 1 and angle 7. Second one, angle 2 and angle 8. Now we are talking about interior angles. So if it is making a Z, here it is Z and here it is also Z, then they are called alternate interior angles. Alternate interior angles. First one, that is angle 4 and angle 6. Second one, that is angle 3 and angle 5. These two are alternate interior angles. Now if it is making a C, whether it is true or false, if we are making a C, then we can say it is an interior angle on same side. Interior angle on same side. So they are of pair angle 4 and angle 5, and second one is angle 3 and angle 6. Also we know that when two lines intersect each other, they are making a two pair of vertically opposite angles. So here 1 and 3 are vertically opposite angle, 2 and 4 vertically opposite angle, 5 and 7 vertically opposite angle, and 6 and 8 vertically opposite angle. Now corresponding angle के बारे में हमने 7th स्टैंडर्ड में सीख लिया था. ये सभी नाम आपको पता है, और वहाँ पे हम यूज कर रहे थे कि ये दोनों है वो सेम मेजरमेंट के होते हैं, ये दोनों भी सेम मेजरमेंट के होते हैं, ये दोनों भी सेम और ये दोनों भी सेम. सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होता है, तो वो भी वो सेम मेजरमेंट के नहीं होते, वो दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. सिमिलरली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात अगर हम करते हैं तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड दे आर सप्लीमेंट्री. जस्ट यही एक चीज ऐसी है कि जो सप्लीमेंट्री है, बाकी सब क्या होंगे, इक्वल. तो इसके लिए हमारे पास एक्सियोम एंड थियरम होंगे. जो थियरम और एक्सियोम की बात हम करने वाले हैं और वही हम प्रूव करेंगे. Now already we have talked about axiom 6.1 and 6.2, that two axiom that does not require a proof. Now we are starting with axiom 6.3 and axiom 6.4. तो ये दोनों एक्सियोम है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और वो बेस्ड ऑन टू पैरेलल लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन है. तो वी नो दैट व्हेन वन ट्रांसवर्सल लाइन intersect two parallel line, it makes 8 angles. So this is a rough figure for that. Now axiom 6.3 is what? If a transversal line intersect two parallel lines, ये दोनों parallel line है, उसको एक transversal intersect कर रही है, then each pair of corresponding angles are equal. मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, सिमिलरली ये दोनों इक्वल होंगे, सिमिलरली ये दोनों इक्वल होंगे, और ये दोनों इक्वल होंगे. Is it clear? So this is a axiom 6.3 and इसका यूज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करने वाले हैं.
सिमिलरली एक्सियम 6.4 है वो इसका कन्वर्स थ्योरम है, कन्वर्स एक्सियम है। क्यों कन्वर्स के बोल सकते हो? क्योंकि इसमें क्या था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे जब ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा। तो अब ये एक्सियम में क्या होगा, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो टू लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, नॉट पैरेलल लाइंस, टू लाइंस, यहाँ पे टू पैरेलल लाइंस बोल था, such that a pair of corresponding angles is equal, यहाँ लास्ट में था जो हो सकता था, then two lines are parallel। तो ये कन्वर्स ऑफ एक्सियम 6.3 है। Now let us start with theorem 6.2। theorem 6.2 इस फिगर के हिसाब से ही है, if a transversal intersect two parallel line, यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइन है, then each pair of alternate interior angle is equal। हम किसको alternate interior angle बोल सकते हैं, ये 5 वाला और ये 3 वाला, ये दोनों है, सिमिलरली ये दोनों है, दोनों पेयर इक्वल है वैसा दिखाना है। तो लेट्स से अगर मैं एंगल 7 और यहाँ पे है एंगल 3, इसकी बात कर रहा हूँ, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3? एक्सियम 6.3 ये एक्सियम से हम लिख सकते हैं। देन 7 इज इक्वल टू 3 लिख दिया है। अब सिमिलरली यहाँ पे ये 3 है, तो आई कैन राइट 7 इज इक्वल टू 5, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों? तो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये प्रूफ है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुए। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो आई कैन राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, हेंस प्रूफ। तो 3 और 5 ही है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों सिमिलरली ये दोनों को भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये थ्योरम का भी हम आगे यूज करने वाले हैं कि इफ टू वन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। थ्योरम 6.3 है वो 6.2 का कन्वर्स थ्योरम है। 6.2 का कन्वर्स कैसे बोल सकते हो, उल्टा है। इसलिए कि 6.2 में हम क्या प्रूव कर रहे थे कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, देन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो वो लाइन पैरेलल हो जाएगी। सो वही लिखा हुआ है, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो लाइन को मिल रही है दोनों में। अब ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। देन टू लाइन आर पैरेलल, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये यूक्लिड का एक्सियम 5 से पैरेलल लाइन का एग्जिस्टेंस होता है, उसका ही यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो दिस इज थ्योरम 6.3। देन थ्योरम 6.4 है, वो भी कुछ ऐसा ही है, प्रूव करके देखते हैं। थ्योरम 6.4 में क्या दिया हुआ है, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस सच दैट then each pair of interior angles on same side are supplementary। देखो ये एक फिगर बना लेते हो कि एक लाइन है ट्रांसवर्सल और ये दो पैरेलल लाइन है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड की बात कर रहे हैं इन दोनों की, ये दोनों सप्लीमेंट्री है वैसा दिखाना है। तो सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 4 बोल देता हूँ और ये एंगल 5 है। तो ऑलरेडी आपको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। क्यों? ये दोनों क्यों 180 हो गए, बिकॉज लीनियर पे है, एक्सियम 6.1। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 है। अब आई कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। क्यों लिख सकता हूँ वैसे, बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वो भी हमने प्रूव कर लिया हुआ। सो उसका यूज करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। एंगल 5 प्लस एंगल 4 180 प्रूव हो गया। वैसे ही अगर ये दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 180। तो यही है स्टेटमेंट, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स, एक ट्रांसवर्सल लाइन है वो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ये सेम साइड की बात कर रहे हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अलग अलग साइड की बात नहीं कर रहे हैं।
दोनों सेम ही साइड होने चाहिए, मतलब सी बनना चाहिए इस तरह से, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट। नाउ थ्योरम 6.5 है, वो अगेन इसका कन्वर्स थ्योरम है। दो दो के पैर में ही आपको थ्योरम याद रखने हैं, पहला थ्योरम याद रह जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसका कन्वर्स है। ट्रांसवर्सल लाइन वहां तक लिखना ही है, ये इंटरसेक्ट वाला भी लिखना है। टू, यहाँ पैरेलल वाला वर्ड लास्ट में जाने देना है, तो यहाँ पे लाइंस आर पैरेलल, ये लास्ट में चला गया, बाकी एज इट इज टू लाइंस such that each pair of interior angles on same side are supplementary, then two lines are parallel. क्लियर? तो इस तरह से आप थ्योरम बना सकते हो, ये भी प्रूव कर सकते हैं, बट इसके प्रूव की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने ये प्रूव कर दिया। तो इसका रिवर्स ये स्टार्ट करेंगे, एंगल 5 + 4 180 लेंगे, उसके हिसाब से एंगल 1 = एंगल 5 ले लेंगे, एंगल 1 + 4 = 180 ले लेंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा दोनों लाइन पैरेलल है। नाउ थ्योरम 6.6 की बात करते हैं, तो थ्योरम 6.6 क्या है, तो वो एक्चुअली यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम के हिसाब से कि लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइंस, एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन सपोज ये है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन। अब एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर रहा हूँ जो इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, तो ये लिखा हुआ है LMNN, या तो मैं ऐसे बोलूँ L के पैरेलल M है और M के पैरेलल M है। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइंस, L M के साथ पैरेलल है, M N के साथ पैरेलल है, आर पैरेलल टू ईच अदर, देन L और M दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम याद करो, क्या था फर्स्ट एक्सियम, दैट two things are equal to one another, then they are equal to the one another, that same things are equal to one another, then they are also equal। तो यहाँ पे वही हमने लाइन के लिए यूज किया हुआ है। तो ये थ्योरम की प्रूफ की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सियम और पोस्टुलेट की बात करते हो तो वो ऑलवेज ट्रूथ ही होते हैं, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सभी थियरम जो हमने थ्योरम 6.6 तक जो देखे वो प्लस एक्सियम दोनों, उन दोनों का यूज करके अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने वाले हैं। याद रखो ये हर एक थियरम और एक्सियम है वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आपको काम आने वाला है, जहाँ भी जियोमेट्री पढ़ोगे वहाँ पे ये यूज होगा। सो प्लीज़ ये खाली एक्सरसाइज 6.2 के लिए याद रखने वाली बात नहीं है, ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रखना पड़ेगा।